Hello everyone, welcome to the economics lecture series by Institute of General Studies. Please note that all the lectures are interrelated. Therefore, it is advisable to start from the beginning and watch the complete economic series for wholesome understanding of UPSC economics syllabus. हेलो एवरीवन पिछली क्लास में हमने ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को स्टडी किया था एंड इन दिस क्लास वी विल स्टडी द कंसेप्ट ऑफ ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट. Gross national product, it is the money value of goods and services produced by the nationals or normal residents during a financial year. देखिए जीडीपी के अंदर हम फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस की जाती है हम उनको कंसिडर करते हैं. यहाँ पर वी विल कंसिडर द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स of the country during a financial year. We are now concerned with nationals or normal residents only. भले ही वो इंडिया के अंदर रहते हों या इंडिया से बाहर रहते हों. जीडीपी जो है वो एक टेरिटोरियल कंसेप्ट है. जीडीपी इज़ रिलेटेड टू वन डोमेस्टिक टेरिटरी वेर एज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इट इज़ कंसर्न विद द नेशनल्स ऑफ ए कंट्री ओनली. यहाँ पर मैं करेक्शन कर देता हूँ. इट इज़ मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. अगर मैं लेमन टर्म्स में बात करूं तो जीडीपी इज़ द गुड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया एंड जीएनपी इज़ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय इंडियंस. जीएनपी की डेफिनेशन के अंदर बेसिकली कई बार नेशनल टर्म यूज़ की जाती है और कई बार नॉर्मल रेजिडेंट टर्म यूज़ की जाती है. एनसीईआरटी के अंदर नेशनल टर्म का यूज़ किया गया है वेयर एज इन सम अदर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स नॉर्मल रेजिडेंट इज़ द टर्म विच इज़ यूज्ड इन जीएनपी डेफिनेशन. Normal residents. Now, who are normal residents? Normal residents mean people who usually reside in India and have long-term economic interest in the country. So, normal resident की definition के अंदर वो लोग भी include हो जाएंगे जो कि मे बी Indians citizen ना हो, but they are residing in India and they are having some long-term economic interest in our country. For example, a foreigner may settle in India. He may have a long-term economic interest in our country. So that will also be included in GNP. In GNP, we also include firms, organizations, etc. which are owned by the nationals. मान लीजिए कोई भी कंपनी है, कोई भी फर्म है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जो ओनर है वो इंडियन है. सो वेदर द फर्म इज़ लोकेटेड इन इंडिया और लोकेटेड अब्रॉड, देन in whichever case if the firm is owned by Indian, then its output, its final value of goods and services produced will be counted in GNP. चलिए मान लीजिए अभी जो मैंने ये बॉक्स बनाया है दिस डिनोट्स इंडिया और इसके अंदर नॉर्मल रेजिडेंट्स भी रहते हैं और नॉन रेजिडेंट्स भी रहते हैं. नॉर्मल रेजिडेंट्स के अंदर मेनली इंडियन सिटीजन्स आएंगे और नॉन रेजिडेंट्स के अंदर मेनली फॉरेनर्स आएंगे. बट देयर विल बी सम फॉरेनर्स जो कि इंडिया में रिसाइड कर रहे होंगे एंड देयर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट विल बी इन इंडिया. सो a very minority of these foreigners will be included in normal residents as well, but majority of the foreigners will be treated as non-residents only. So normal residents will have Indian people and Indian companies, whereas non-residents in India will be foreigners and foreign companies in India. अब मैंने यहाँ पर X, Y और Z मार्क किया है. Now X suppose denotes the income earned by the normal residents in India. Y denotes the income earned by Indians who are working abroad, and Z denotes the income earned by non-residents in India. Now what will be the value of GDP in this case? What is the value of GDP? Whether it will be X plus Y, whether it will be X plus Z, what will be the value? So the value of GDP will be X plus Z. द रीज़न इज़ दिस बिकॉज जीडीपी इज़ अ टेरिटोरियल कंसेप्ट. इंडिया की टेरिटरी के अंदर जो भी प्रोड्यूस हुआ उसे हम जीडीपी में काउंट करेंगे, वेदर इट इज़ प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स. वी डू नॉट केयर who has produced it, but if it is produced in India, then it will be counted in the GDP of India. Now what will be the value of GNP? The value of GNP in this case will be X plus Y, because gross national product is the final value of goods and services produced by the nationals or normal residents. तो यहाँ पर जो इंडियंस हैं, इंडियंस लिविंग इन इंडिया एज वेल एज इंडियंस हु आर वर्किंग अब्रॉड, X plus Y
their output will be considered in the gross national product calculation. Now take another example. An Indian working in USA embassy in India, his income will be counted in GNP because the Indian is working in USA embassy. Now USA embassy is not part of Indian domestic territory, but he is Indian national, so it will be counted in the gross national product, not gross domestic product. We need to see who has produced it. When we are calculating GNP, we need to see who has produced it, not where it is produced. We are not concerned where it is produced, whether it is produced in India or abroad. If it is produced by an Indian, then it will be counted in the Indian GDP. Therefore जब हम GDP की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि where it is produced, and जब हम GNP की बात करेंगे तो then we will see who has produced it. Now the next question is, if a foreigner is working in India, whether his output will be counted in GDP or GNP. It will be counted in the GDP because it is produced in the Indian territory and it is produced by a foreigner, not a normal resident Indian or normal Indian citizen. So we will not count this in GNP. Now let us see what is the relation between GDP and GNP. GNP is GDP plus net factor income from abroad. नाउ व्हाट इज़ दिस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. जब हम पुराने पिछले एग्जाम्पल को स्टडी करेंगे जिसमें जो ये वाई था, व्हाट वाज वाई? वाई वाज बेसिकली द इनकम अर्नड बाय इंडियंस एंड इंडियन कंपनीज अब्रॉड, एंड व्हाट वाज जेड? जेड वाज द इनकम अर्नड बाय नॉन रेजिडेंट्स, दैट इज़ द फॉरनर्स वर्किंग इन इंडिया. सो वाई माइनस जेड जो होता है, दैट इज़ द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वाई माइनस जेड. सो हेयर आई विल राइट वाई माइनस जेड. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंडियंस ने, इंडियन कंपनीज़ ने अब्रॉड से 15-20 मान लीजिए 20 लाख की इनकम अर्न की है, और जो फॉरेनर्स जो कि इंडिया में वर्क कर रहे हैं उन्होंने मान लीजिए 10 लाख की इनकम अर्न की है, तो 20 माइनस 10 दैट इज़ 10 लाख. 10 lakhs विल बी द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. अब GDP और GNP में से कौन सा बड़ा होगा? इट डिपेंड्स ऑन द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. इंडिया के केस के अंदर हमारा जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है दैट इज़ स्लाइटली नेगेटिव. इसका मतलब ये है कि जो इंडियंस हैं, द इंडियंस वर्किंग अब्रॉड आर अर्निंग लेस देन व्हाट फॉरनर्स आर अर्निंग इन इंडिया. दैट्स वाई NFIA इज़ नेगेटिव इन द केस ऑफ इंडिया. जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, इसके अंदर हमने एक टर्म यूज़ किया दैट इज़ द फैक्टर. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म फैक्टर? देखिए इकोनॉमिक्स के अंदर जो इनपुट्स है दे आर क्लासिफाइड इन 2 ways. There are 2 types of inputs. First is the factor inputs और जिनको हम प्राइमरी inputs भी कहते हैं, and second are the non factor inputs जिनको हम secondary inputs कहते हैं. There are 4 factor inputs: land, labor, capital and entrepreneurship. जो लैंड है उसके लिए हम रेंट पे करते हैं, जो लेबर है उसके लिए हम वेजेस या फिर सैलरीज पे करते हैं, जो कैपिटल है जो हम पैसा लेते हैं, फॉर एग्जांपल बैंक से हमने पैसा लिया, उसके लिए हम इंटरेस्ट पे करते हैं. एंड एंटरप्रेन्योरशिप, व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप? बेसिकली किसी आदमी ने अगर अपना बिजनेस स्टार्ट किया है तो ही गिव्स हिज टाइम, ही गिव्स हिज एफर्ट्स, तो उसके विज़े भी वो कुछ प्रॉफिट चार्ज करता है. सो द रेम्यूनरेशन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द प्रॉफिट. नाउ व्हाट आर द नॉन फैक्टर इनपुट्स? बेसिकली जो नॉन फैक्टर इनपुट्स या फिर सेकेंडरी इनपुट्स होते हैं, दीज आर ऑल अदर फैक्टर्स अदर देन द फैक्टर इनपुट्स. जो 4 हमने फैक्टर इनपुट्स की बात की, इनके अलावा जो भी फैक्टर होंगे दीज ऑल आर नॉन फैक्टर इनपुट्स. फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल. अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको आप बड़े ध्यान से सुनिएगा. जो वैल्यू एडिशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनपुट्स के थ्रू ही हो सकता है. फॉर एग्जांपल मुझे सोलर पैनल मैन्युफैक्चर करने हैं, तो इसके लिए मैं एक फैक्ट्री लगाऊंगा. अब उस फैक्ट्री के लिए मैं एक लैंड लूँगा, उस फैक्ट्री के लिए मैं कुछ लेबरर्स हायर करूँगा, उस फैक्ट्री को मैं इक्विपमेंट्स लगाने के लिए मैं बैंक से लोन लूँगा, कैपिटल लूँगा, साथ ही साथ मैं अपना टाइम और एफर्ट इसके अंदर लगाऊँगा. देयरफॉर आई विल प्रोवाइड फैक्टर इनपुट्स in my unit, in my manufacturing unit. I will take the raw material. What will be the raw material in the case of manufacturing of solar panels? It will be silicon, it will be copper, etc. और इसके बाद जो फाइनल आउटपुट आएगा, these will be solar panels.
अब जो फैक्टर इनपुट्स हैं, इन फैक्टर इनपुट्स के थ्रू मैंने रॉ मटेरियल के ऊपर वर्क किया जिससे कि मेरा फाइनल आउटपुट आया. सो द वैल्यू एडिशन इज़ डन बाय फैक्टर inputs only. Therefore, it is very important to understand here is that the value addition is done by factor inputs only. In GDP, we are concerned with value addition, and value addition is done by factor inputs only. The factor inputs act upon the raw material and do the value addition. For example, आपने 10 रुपये का रॉ मटेरियल खरीदा एंड द फाइनल प्रोडक्ट इज सोल्ड एट इन रुपीज़ 25. तो 25 माइनस 10 दैट मीन्स 15 रुपीज़ का आपने वैल्यू एडिशन किया एंड दिस वैल्यू एडिशन इज़ डन थ्रू फैक्टर इनपुट्स ओनली बिकॉज आपने फैक्टर इनपुट्स लगाए रॉ मटेरियल के ऊपर जिसके कारण जो 25 रुपये का फाइनल जो प्रोडक्ट बना जिसको आपने मार्केट में सेल किया. इनकम इज़ अर्नड ओनली बाय वैल्यू एडिशन. In other words, if one has to earn income, he has to apply factor inputs to do the value addition. Thus, income can only be earned by factor inputs. That is why the GNP formula net factor income is used. Factor inputs, they act upon the raw material and they add value. Therefore, if I want to earn income, then I have to do some value addition. And to do value addition, I need certain factor inputs. Therefore, income can only be earned by factor inputs. तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ब्रॉडली ओनली देर आर 4 टाइप्स ऑफ इनकम्स. रेंट कैन बी एन इनकम, वेजेस कैन बी एन इनकम, इंटरेस्ट कैन बी अ सोर्स ऑफ इनकम एंड प्रॉफिट कैन बी अ सोर्स ऑफ इनकम. देयर कैन नॉट बी एनी इनकम अदर देन दीज 4. अगर मैंने किसी को लैंड किराए पे दिया तो मुझे रेंट मिलेगा. अगर मैं किसी के फैक्ट्री में लेबर की तरह काम कर रहा हूँ तो देन आई विल गेट वेजेस और सैलरीज. इफ़ आई हैव गिवन लैंड आउट सम मनी टू सम पर्सन देन आई विल गेट इंटरेस्ट ऑन दैट मनी. एंड अगर मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, देन आई विल गेट प्रॉफिट बिकॉज आई एम पुटिंग टाइम एंड एफर्ट इन टू दैट वेंचर. सो दीज आर ब्रॉडली 4 टाइप्स ऑफ इनकम्स. सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ फैक्टर इनकम. इनकम और फैक्टर इनकम तो सेम है, मतलब वी आर यूजिंग द वर्ड इंटरचेंजेबली. इनकम क्योंकि सिर्फ फैक्टर इनपुट से आ सकती है इसलिए इनकम एंड फैक्टर इनकम दीज मीन द सेम थिंग्स. नाउ इसी से रिलेटेड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मनी एंड इनकम एंड एज वेल एज वेल्थ. तो इसके लिए सबसे पहले हमें एसेट्स समझना जरूरी है. एसेट्स क्या होता है? एसेट्स इज़ एनी वैल्यूएबल थिंग can be termed as asset. House can be asset. Gold, जो आपके पास gold है, that can be an asset. Bank account में जितना पैसा है, that can be an asset. So any valuable thing can be an asset. Now what is wealth? Wealth is the sum total of all the assets that you have. So this is the wealth. Now money is the highly liquid asset. Highly liquid asset is termed as money. जो गोल्ड है, जो आपका घर है, दीज आर नॉट वेरी लिक्विड. घर अगर आपको बेचना होगा तो आपको पहले किसी 10-20 लोगों से बात करनी होगी, फिर आप रेट पे आपकी नेगोशिएशन होगी. देन इट मे टेक 1 month, 10 days, 20 days, 2 months. सो इट इज़ नॉट वेरी हाईली लिक्विड. वेयर अगर आपके पास कैश है तो आप मार्केट में अगर कैश लेके जाएंगे तो कैश देके आप कोई भी सामान तुरंत खरीद सकते हैं. दैट्स वाई कैश इज़ अ वेरी हाईली लिक्विड एसेट. सो मनी का मतलब होता है विच एवर इज़ द हाईली लिक्विड एसेट कैन बी टर्म्ड एज मनी. फॉर एग्जाम्पल कैश एंड बैंक डिपॉजिट. मनी इज़ डिफरेंट फ्रॉम द इनकम. इनकम जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम होती है. जो 4 तरह की जो हमने रेंट, वेजेस, सैलरीज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट की बात की, देर आर ओनली दीज 4 टाइप्स ऑफ इनकम्स एंड दीज इनकम्स आर डिफरेंट फ्रॉम द मनी. नाउ कैन देयर बी मनी विदाउट इनकम? येस, ऐसा भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट है, आपके पास आपके फादर ने आपको बहुत सारे पैसे दे रखे हैं, बट आप क्योंकि स्टूडेंट है आप इनकम अर्न नहीं करते हो. दैट्स वाई यू कैन हैव मनी विदाउट इनकम. नाउ देयर कैन ऑल्सो बी इनकम विदाउट मनी. फॉर एग्जाम्पल इन द बार्टर सिस्टम. पहले बार्टर सिस्टम होता था, आप किसी को गेहूँ देंगे और वो इन एक्सचेंज में आपको अपनी कोई और वैल्यूएबल चीज़ आपको देगा. तो इस पूरे ट्रांजेक्शन के अंदर कोई भी मनी का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, कोई कैश का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, एंड बट देयर इज स्टिल इनकम इज़ बीइंग अर्नड. So in barter system there is income because there is production, there is a factor income, there is a production, but there is no money as such. And which one is greater, GDP और GNP, ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए. जैसे मैं अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप भी अगर इस नॉलेज को आगे शेयर करेंगे अपने दोस्तों की, उनकी IAS बनने में, उनकी ड्रीम अचीव करने में हेल्प करेंगे, देन यू विल गेट ब्लेसिंग्स. दूसरों की हेल्प करने से वी फील गुड, वी फील हैप्पी. Therefore, don't hesitate to like, share and comment about this video.
थैंक यू सो मच।